Good morning to all the students of class 8. Welcome to all of you in mathematics class. Today our topic is algebraic expression. This is our running chapter, algebraic expression, and we will solve from chapter 9.5. Some questions we will solve from 9.5 chapter, and one by one we will discuss here, and listen carefully. Also you watch carefully this video, okay? And now here is the question, and we will solve here. That is, question is given a square minus b square the whole square. Okay, we have to solve here, and now we will use the identity by using formula a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square. We will get the in place of a it is given a square, and in place of b is given b square. So we will use this formula. A square means a square is square, and so we will use a square the whole square minus 2 into a means a square, and b means b square. In place of b is b square, 2ab plus b square. Okay, b square whole square. Okay, in place of b is given b square, so we will use b square the whole square. Okay, and now we will solve. This one will be a square into square, that is 2 to the 4. Okay, a to the power 4 minus 2 a square into b square, it will get minus 2 a square b square, and now plus b to the power 4, 2 to the 4, and so we will get b to the power 4. This is the answer of the first question. And now second one is, we have to solve it here. Simplify that 2x plus 5 the whole square minus 2x minus 5 the whole square. This we have to simplify. Okay, and so we will use the two identities, the two formula. First one is a plus b the whole square equal to a square plus 2ab plus b square, and for second term we will use a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. We will get here in place of a, that is 2x, and so we will use 2x whole square plus 2 into a means 2x and b means 5, and 2 into 2x into 5 plus b square, that is 5 square. In place of b it is given 5, so 5 square. And now in the second term, okay, we will get in bracket, because on the outside there is a sign, negative sign, so we will use inside the bracket, and by using the identity a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square, we will get also in place of a is given 2x, so there is 2x whole square minus 2 into 2x a into b means 5, in place of b is 5 plus b square, that is 5 square, and so we will get 2x the whole square, that is 2 to the 4x square plus 2 to the 4 5 the 20x plus 5 square means 5 into 5 25, minus inside the bracket here is given 2 square, that means 2 to the 4x square, and minus 2 to the 4 5 the 20x plus 5 into 5, that is 5 5 the 25. Okay, and we will use the bracket inside the bracket, and now in the next term we will remove the bracket. This bracket we will remove, and this will get 4x square plus 20x plus 25 minus 4x square. And when we will remove the bracket, in the outside, if the outside is negative sign, though inside the bracket all the sign will be changed, and so here is the negative sign, so inside the bracket it will be changed, minus 20 will be changed into plus 20, and plus 25 is changed into minus 25. And now we will remove this 25 minus 25 plus 25, it will cut, because both are like term but they have different sign, opposite sign. And here is 4x square plus positive and minus 4x square, it will also delete here, it will also cut here. Okay, remove here by using minus 4x square negative sign, this will be positive sign. And now the remaining is this rest is given 20x plus 20x, it will get 20x plus 20, it will get 40x. This is the answer of the second question. And now in third question it is given 2.5p minus 1.5q square minus 1.5p minus 2.5q the whole square. We will solve here by using the formula. Also once again we are using the formula in the as previous question, a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square,
Okay, in the both term we will use the same formula, a minus b the whole square. And now 2.5p, in place of a it is given 2.5p, so we will use a square, that means 2.5p square, minus 2 into a, that is 2.5p, into b 1.5q, and so plus b square 1.5q square, minus here is given, and inside the bracket 1.5p square whole square minus 2 into a into b plus 2.5q the whole square. Okay, and now we will solve 2.5 square, that is it will get 6.25 p square, minus 2 into 2.5 into 1.5 pq, it will get 7.50 pq, and plus 1.5 square means 2.25 q square, that means q square. And now here inside the bracket 1.5 square, that means 2.25 p square, minus 2 into 1.5p into 2.5q, that it will get once again 7.50 pq, and plus square of 2.5q is you will get 6.25 q square. Now we will remove this bracket. Okay, and when we will remove this bracket, and if the outside of the bracket the given sign is negative, so inside the brackets sign will be changed. Okay, and so here is given 6.25 p square minus 7.50 pq plus 2.5 q square minus 2.25 q square, and it will be changed, minus in change into plus, and because there is a minus sign outside the bracket, and 7.50 it will get, and minus is here is also changed, minus 6.25 q square is equal to this one will be removed by this one, 7.50 pq will be cancelled by minus 7.50. This value is negative sign and another is positive sign, so it will cancel, and so remaining is rest is 6.25 q square plus 2.5 q square here is given, and we will use the like term at the same place, and so 6.25 p square minus 2.5 p square, here is 6.25 p square, and here is given minus 2.5 p square, and plus here is minus 6.25 q square, 6.25 q square, and plus 2.25 q square. And now we will solve by subtracting this 6.2 from the 6.25 p square minus 2.525 p square, we will get 4 p square, and here by subtracting 2.25 q square from minus 6.25 q square, we will get 4 q square. This is the answer of the third question. This is the question of solution of the question. And once again एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पुनः वेलकम है, आप सबका स्वागत है और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको क्लास 8 के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब इसे देखें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो चैप्टर 9 है हमारा एनसीईआरटी बुक में, उसका 9.5 जो चैप्टर है उसी से मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा इसको, तो अच्छी तरह से जब वीडियो वॉच कीजिएगा यूट्यूब पे तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। और देखें और बिल्कुल शांति से आप इसे देखिएगा, और लिखने के बाद फिर अपने कॉपी में इसे नोट करके दिखलाइएगा भी मुझे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे हम लोग देख रहे हैं इसको। सिंप्लीफाई एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसको सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट में करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब है, इसको बोलते हैं सरलीकरण, हिंदी में कहते हैं। और अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, फार्मूला को बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी फार्मूला को यूज़ किया हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ a के जगह पर ए स्क्वायर है और b के जगह पर बी स्क्वायर है, तो वही फार्मूला यूज़ करें हम लोग। ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर हमारा ए स्क्वायर है तो 2 इंटू ए स्क्वायर, और फिर बी के जगह पर बी स्क्वायर है तो 2ab बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पर बी की जगह पर हमारा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हम लोग। अब देखेंगे सॉल्व करें तो a का पावर 2 to the पावर 4 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, जब हम कंबाइन करेंगे साथ में जोड़ेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब प्लस ये b का पावर 4, 2 to the 4 है, ये हो गया आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा है, देखिए 2 टर्म है इसमें, सिंप्लीफाई से भी करना है, 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म सेकंड, दोनों में हम देखें क्या कि सेम क्वांटिटी है लेकिन साइन अलग है थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करें दोनों,
एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब हम लोग पाएंगे क्या, इसी दोनों फार्मूला पे हम लोग ये दोनों को यूज़ करें। पहला टर्म है ये ऊपर वाले फार्मूला पे, प्लस वाले फार्मूला पे, दूसरा टर्म है ये माइनस वाले फार्मूला पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 5 है, तो a स्क्वायर तो मतलब 2x का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 इंटू 2x इंटू बी 2ab है, प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर दिए। फिर इसी तरह से ब्रैकेट सेकंड टर्म है, ये ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए। तो ये देखिए a की जगह पर वही है, बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे केवल साइन चेंज है, इसका केवल माइनस है यहाँ पे, तो माइनस कर दिया हम लोग। मतलब a स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस b स्क्वायर, b के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। आगे फिर देखिए हम लोग ये तो जैसे वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 जा 20x हो गया। ये 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 गुना करेंगे 25 आएगा, 5 5 जा 25, माइनस ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, 5 जा 20x हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखें क्या, ब्रैकेट को जब हटाएंगे हम लोग तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है तो अंदर का साइन सारा बदल जाएगा। अब देखिएगा बाहर माइनस है तो अंदर में ये जो माइनस 20x है ये प्लस 20x हो जाएगा, और ये प्लस 25 है ये हो जाएगा माइनस 25। अब देखिए वैसा ही हम बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जैसे वैसे हम लोग लिख दिए इसको। इसके बाद ये देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस 20x हो गया, ये प्लस है तो माइनस 25 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, 35 प्लस में पॉजिटिव है, ये 25 नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस 25 और नेगेटिव 20 हो गया ये। अब माइनस 25 दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि एक ही क्वांटिटी दोनों है, एक ही टर्म है, और केवल साइन अलग अलग है तो दोनों कट जाता है, तो कट गया दोनों। फिर यहाँ देखिए हम लोग 4x स्क्वायर ये प्लस में है, ये 4x स्क्वायर माइनस में, तो ये भी दोनों कट गया, बच गया 20x और यहाँ प्लस 20x, 20x प्लस 20 इक्वल टू 40x। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन 2.5p का माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये दोनों हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी हम लिखे नहीं, डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला हैं, इसको तोड़े हैं। a के जगह पर 2.5p है और b के जगह 1.5q है, इसलिए हम लोग ये यूज़ किया है हम लोग 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1. के जगह पर 1.5q है तो 1.5q का होल स्क्वायर माइनस, फिर देखिए अंदर में भी ब्रैकेट के अंदर कर दिए, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट अंदर बिल्कुल वैसे ही हम लोग सॉल्व किए, जो जैसा है वैसे लिख दिए हम लोग। फिर अगले स्टेप में क्या किया हम लोग, ये इसका स्क्वायर किया 2.5p का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये डेसिमल डाले हम लोग 2 प्लेस के बाद 6.25p स्क्वायर माइनस यहाँ भी तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7.50pq आएगा, प्लस 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2.25q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा, ठीक है। इस p है तो p स्क्वायर हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई तीनों कीजिएगा तो 7.50pq प्लस 2.5 का q का होल स्क्वायर है तो 6.25q का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जैसे वैसे छोड़ दिए, यहाँ तक बिल्कुल जैसा वैसा छोड़ दिए, ये बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन सारा बदलेगा जैसे पहले हम लोग बताए थे। तो देखिए हम लोग 2.25 है, ये यहाँ लीजिए 2.25 है, माइनस है हमारा, यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस 7.50pq, और माइनस यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस हो गया क्योंकि बाहर माइनस साइन इसलिए अंदर का साइन सारा बदल गया। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या, देखिए सेम लाइक टर्म आ रहा है, ये 7.50pq प्लस में है, यहाँ 7.50pq माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। बच गया हमारा क्या 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर और माइनस 6.25q स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर लाइक टर्म एक जगह लिखेंगे हम लोग, और ये q स्क्वायर लाइक टर्म दोनों एक जगह लिखेंगे। देखिए हम दोनों में 6.25p स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर दोनों में माइनस करेंगे हम लोग, ये इसमें से घटाएंगे इसको तो हमारा 4p स्क्वायर आएगा, और फिर इसमें भी यहाँ करेंगे माइनस 6.25q स्क्वायर में से 2.25q स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4 हमारा आएगा 4q स्क्वायर। ये दोनों में बड़ा है हमारा 6.25, इसलिए इसका साइन माइनस है, इसलिए हमने माइनस का यूज़ किया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अच्छी तरह से इसको 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे यूट्यूब में के सारे, और सब्सक्राइब भी करेंगे, और फिर आप कमेंट भी देंगे अच्छा, जिस तरह से
मैं आग्रह करता हूँ आप कि अच्छी तरह से वॉच के 1-2 बार ठीक से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार जब देखेंगे बिल्कुल कुछ चैप्टर समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, आज के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम।